आपने ये H1 का लॉटरी सिस्टम ही अप्लाई करना था तो इंडिया में रहकर भी कर सकते थे. What is the actual pathway to work abroad and what are the requirements for this? शॉर्टेज सीपीएस की है. स्टेम सर्टिफाइड कोर्स पाथवे वाला कोर्स करे हुए सीपीए की नहीं है. Hello all, welcome to Edumon. Welcome to another exciting podcast of season 3. These days, lot of candidates are coming and asking, क्या आप CPA के साथ US में जॉब लगवा देते हो? And this is a very alarming situation because some competitors are misleading the audience, especially students who are fresher and looking forward to foreign opportunities. Since working professionals know very well what it takes to move abroad with a qualification like CPA, the name they use is pathway courses to market these myths. But today we will bust the myths as we discuss further with Rohan. Hi everybody. Hey. Thanks for having me on, Mohit. So Rohan, you know the situation, we have been discussing this. Yeah. So my very straight and very first question to you is, what are these pathway courses? Okay. So if you wanted to move abroad, actually ज़्यादा रास्ते नहीं होते. There are only a few pathways or paths that you can take. Like for example, you can get your company to send you abroad. That's one option where you're working with an international or a MNC and they send you abroad. Second is you apply for immigration. Like a lot of people apply for immigration to Canada. And the third option is आप बाहर पढ़ने चले जाओ. तो ये पाथवे कोर्स जो है ये बेसिकली वही कह रहे हैं कि ये पाथवे है कि आप पढ़ाई करने बाहर चले जाओ. ये वो चीज़ है बेसिकली. And that's all they release to it. Rest is just marketing हुई. So Rohan, as you said, these are the courses which student can use to move abroad. So what are the cost of these program? So these pathway courses specifically, or this is a marketing term by the way, and I will explain this in a little bit more detail as we progress through your questions. But with that being said, the cost of these pathway programs starts off with about 50 lakhs to up to 75. And this is just the cost of the tuition fee. सिर्फ ट्यूशन फी है. अब इसमें वहाँ रहने का, खाने पीने का, जो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी, यहाँ सैलरी जो जा रही है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड नहीं है. या गाड़ी का खर्चा, या कभी समर हॉलीडेज में वापस आओगे इंडिया तो वो फ्लाइट के खर्चे, ये सब कुछ एडेड नहीं है इसमें. दिस इज ओनली बेयर मिनिमम ट्यूशन, दैट्स इट. खाना पीना रहना सहना सब इसके ऊपर है. सो असेंशियली 50 लाख के करीब तो ट्यूशन फीस लगा लो. अगर सबसे सस्ते वाला करते हो, महंगे वाले करते हो तो 75 भी है. और उसके ऊपर उतना ही अमाउंट और रख लो खाने पीने के लिए, क्योंकि 1.5 आपको वहाँ पे रहकर पहले कोई कमाई नहीं होगी उस समय. पार्ट टाइम जॉब्स ही मिलेंगी प्रॉब्ली. वो भी अगर मिलेंगी या आप लोगे तो है. अगर आप नहीं लेते तो वो सब खर्चा आप अपनी जेब से निकालने के लिए तैयार रहो. ये हिसाब रहता है. Okay. So basically, this is not something which everybody can easily afford from their pocket. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. And students तो बिल्कुल ही नहीं. Because वो तो- पेरेंट्स को उनके करना पड़ेगा. Why I asked about the cost in the very beginning, because basically some institutes are doing webinar and they're running ads claiming that they can send Indians directly abroad with very little regard to visa requirements. So do you think this is an acceptable situation when we talk about students especially into this? So let me get into a little bit more detail. You asked me a very very relevant question. तो क्या हो रहा है यार कि these pathway courses, as they're called, pathway to the US courses, ये क्या है? They are STEM certified. So once you get your course to be STEM certified, you actually get an honorary period of 3 years for working in the US. So basically जो आपकी इसकी cost दे रहे हो उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? एक डिग्री मिल रही है प्लस 3 years of work visa मिल रहा है. The thing is, and this is where this whole situation starts to become shaky, starts to sound like a scam, कि it's only going to be fruitful for people who clear their CPAs. अगर आपकी अपनी CPA हो जाती है फिर आप ये STEM कोर्स करके 3 years का वर्क वीजा लेके जॉब ले सकते हो. बट वो जॉब किस चीज़ की है? CPA की जॉब है. ऐसा नहीं है कि STEM कोर्स करोगे तो उसकी कोई जॉब है. STEM कोर्स कर भी लोगे पर अगर CPA मान लो नहीं हुई भी आपकी क्लियर तो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं है. सो दी अपॉर्चुनिटी आर गेटिंग, बेसिकली जो नौकरी आपको मिलेगी वो आपको CPA की मिलेगी, क्योंकि यू आर वेल अवेयर देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ CPAs इन द US. शॉर्टेज CPAs की है. STEM सर्टिफाइड कोर्स पाथवे वाला कोर्स करे हुए CPA की नहीं है. द ओनली रिक्वायरमेंट इज फॉर अ CPA. सो द सिचुएशन इज वेरी सिंपल कि ये जो
programs हैं, they're what they're offering is, think of it transactionally as paying 50 lakhs for a 3-year work visa. That's what that is. Now, let's say after the 3-year work visa has been awarded to you and you have your STEM certification and you also do your CPA. तो ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो आप अब मार्केट में जाओगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, और बिल्कुल मिल जाएगी, कोई शक नहीं मुझे इस बात में. बट देन आफ्टर दैट योर STEM वीजा विल स्टार्ट टू expire, or it will start to near expiry, it will start to come to an end, so you will have to renew it. Now you can't just renew this visa. Your company that you're working with can firstly choose कि उसको renewal की application देनी है या नहीं देनी. तो मान लो वो कंपनी अब कहती है हाँ यार ये बंदा सही है, होशियार है, सैलरी भी ठीक ठाक है, हम अफोर्ड कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहा है, इसको रिन्यू कर देते हैं, तो वो रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है. अब अगर वो डालेगी तो फिर H1 सिस्टम जो है वो लॉटरी सिस्टम है. नाउ देयर इज अ लॉटरी सिस्टम और अ चांस कि शायद आपका जो कंपनी की तरफ से गया एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो जाएगा. एंड देयर इज ऑल्सो अ चांस, एंड इट्स नॉट समथिंग आई वांट टू से टू यू कि आपके साथ ऐसा होगा या कुछ भी, बट इट्स पॉसिबल कि हो सकता ना हो. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद दीज कोर्सेज. ये 3 साल का वीजा बेचा जा रहा है with 50 lakh rupees or whatever lakh rupees of money, और वो वीज़ा फिर रिन्यू होगा, कंटिन्यू होगा, एक्सेप्ट होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेस है वो लॉटरी सिस्टम है जी. तो अगर आपने ये H1 का लॉटरी सिस्टम ही अप्लाई करना था तो इंडिया में रहकर भी कर सकते थे, उसके लिए खर्चा करके वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी, और उसके लिए किसी को 50 लाख देने की भी ज़रूरत थी नहीं. तो ये वाली चीज़ है जिस वजह से यू विल फाइंड इवन एड्यूमॉन्ट में हम पाथवे कोर्स नहीं प्रोवाइड करते. मतलब we offer guidance on how to make it abroad. We help people migrate abroad, give them the guidance necessary, but we don't tell them कि ये कोर्स करो, 3 साल का guaranteed visa है, हमारा pathway है, for a very conscious reason. We've taken the conscious call कि this is not something we want to do. We don't want to sell you a course which may or may not have value. We don't want to sell you a course which comes with a 3-year work visa which may or may not be renewed. एंड वी डोंट वांट इट टू बी दिस वे कि जो मेन चीज़ है जिसकी वैल्यू है वो एक्चुअली आपकी CPA है, जो 2.5, 3.5, 4 लाख में आप कर सकते हो बड़े आराम से. वो करते करते साथ में आपके और भी पैसे लगते चले. वी डोंट वांट टू डू दैट. वी वांट टू कीप थिंग्स क्लीन एंड क्लियर. ठीक है ना? सो द मेन थिंग इन दिस एंटायर पोर्शन इज कि आपको नौकरी मिलेगी CPA कंप्लीट होने के बाद. अब वो आप CPA कंप्लीट इंडिया में बैठ के करो या US में बैठ के करो, वो आपकी कॉल है, बट नौकरी उसके बाद ही है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द STEM कोर्स, दिस व्हाट दैट इज जस्ट गोइंग टू हेल्प यू विद योर वीजा, नथिंग एल्स. तो ये कोई MBA है क्या? STEM व्हाट तो इज STEM? MSc के फॉर्म में है ये. MSc के फॉर्म में कोर्सेज हैं कि आप आओ, आपको हम डेटा एनालिटिक्स ऐसे कुछ ट्रिकी नाइस साउंडिंग नेम्स हैं कि हम आपको ये चीज़ें पढ़ाएंगे, और इन चीज़ों के बाद आपकी जो इंडस्ट्री एप्लीकेबिलिटी वो बढ़ जाएगी. But fact of the matter is they don't have any placements for that STEM course. They don't. The only placements they have are for people who have that STEM course plus have a active CPA. So अगर जो मेरे को हिस्ट्री दिख रही है as of what has happened, और by the way को बहुत पुरानी चीज़ नहीं है, this STEM course is now less than a year old. So it's fairly recent. Before this नहीं होते थे, इसका थोड़ा नाम अब पिक करना शुरू हुआ है. Now the thing is, these STEM courses are available to you, and from what I know from the history that I am aware of, there's about 10 people who did it in India, from India actually, India में नहीं, बाहर जाके पैसे दे के. उन 10 में से 8 लोगों की नौकरी लग गई है, 2 की नहीं लगी, वो लग जाएगी, आई एम श्योर वो भी लग जाएगी. अब वो जो 8 लोगों की नौकरी लगी है, will they continue to stay in the US after their 3-year period, or will half of them come back and half of them will actually be staying there, is a question. Because like I said, renewal system जो है ना, even if you're a good worker, a great worker, is based on a lottery system. वो इस बेसिस पे नहीं है कि आपने काम बहुत अच्छा किया तो गारंटी है जी US में आपको जगह मिल ही जाएगी. वहां पे वो लक का एंगल है. वो 3 साल बाद होना, इसलिए अभी कोई उसकी बात नहीं कर रहा है, बट जब आप उसकी बात समझ लेते हो ना कि 3 साल बाद रिन्यूअल के लिए लॉटरी सिस्टम से जाना है, तो आपको समझ में आती है कि सारा पैसा हो सकता है, मैं मैक्सिमम इतना ही हो सकता है कि आप रिकवर कर लो, या हो सकता है ये डूब ही जाए, पूरी रिकवरी भी ना हो इसकी. क्योंकि आप मान लो कमा भी रहे हो वहाँ पैसे, तो खर्चे भी तो फिर उस हिसाब से हैं. फ्लैट्स महंगे हैं, गाड़ियाँ महंगी हैं, खाना महंगा है, हर चीज़ महंगी है. तो हो सकता है सेविंग आप कर भी लो, बट मे बी यू विल रिकवर द कॉस्ट, मे बी यू वॉन्ट. फिर वो वाला सिस्टम है. दैट इज द रीजन
we wanted to do this with you because which I was seeking कि स्टूडेंट्स जो ऑडियंस है ना वो इस ट्रैप में आ रही है बिकॉज उनको ये लॉटरी सिस्टम तो बताया ही नहीं जा रहा, उनको ये तो बताया ही नहीं जा रहा नौकरी लगेगी तो वो तब लगेगी जब सीपीए क्लियर होगा. वर्किंग प्रोफेशनल जो इस डोमेन में है, जो ग्लोबल एंटिटीज में काम कर रहे हैं, दे नो बेसिकली what as I said what it takes to move abroad. So Rohan, considering all these things, do you see these courses have some positive ROI down the line? Yeah, it depends actually. I'll tell you. If you are able to get your H1 renewed, your visa renewed, and you're able to work there for 10 years or so and then build a life there, तो then definitely यार मतलब why not, है कि नहीं. अगर आप 50-60 लाख रुपए की खर्चना और मान लो 50 और मान लो 1 करोड़ रुपए खर्च के आप यूएस में अपना अच्छा करियर बना लेते हो तो अच्छा है. बट द थिंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अकरिंग थ्रू दिस STEM course is actually low. Because there's a lot of people who are there who are from different countries who are working on work permits who have more जिसे कहते हैं ना probability of getting selected than you do. And from within the Indian pool again there is no certainty कि क्योंकि STEM course है, क्योंकि CPA है तो guaranteed है कि आपको वीजा मिलेगा ही मिलेगा, वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा. और फिर जब तक आप एक मिनिमम ड्यूरेशन वहां रह नहीं लेते ना, आप सिटीजनशिप या ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते. तो फिर हो सकता है कि चीजें वैसे पैन आउट ना करें, सिर्फ 3 साल के बाद आपको वापस आना पड़े. तो फिर 3 साल के बाद जब वापस आ जाओगे तो फिर उस केस में यू माइट रियलाइज कि नुकसान हो गया. इवन इफ यू रिकवर द 50 lakhs और वट एवर ऑड अमाउंट यू पुट इन, वो रिकवर भी अगर कर लेते हो तो भी देयर इज वन कैच, सीरियस कैच हियर. यूएस का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इंडिया में काउंट नहीं होता. जस्ट लाइक डायरेक्टली इंडिया में जो वर्क एक्सपीरियंस है यूएस में काउंट नहीं हो जाता. सो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो होता है ऐसे ट्रेड ऑफ ऐसे इंडिया टू यूएस नहीं होता. यूएई इज एन एक्सेप्शन केस. हम भी मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस स्पेशली यूएई का हो तो काउंट कर लेते हैं इंडिया में. यूएस में भी यूएई का मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है बट इंडिया का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता. तो उल्टा भी ट्रू है, यूएस का एक्सपीरियंस इंडिया में नहीं काउंट होता. तो अब आप वापस आ जाओगे और फ्रेशर की तरह चालू करोगे और फिर आपको लगे यार मैं यूएस में काम कर रहा था, सब था मेरे पास, अब मैं अचानक से वापस आ गया हूँ और अब नौकरी भी शुरू से शुरू करनी पड़ रही है. वो जो 3 साल वहां मेहनत करी उसका बदले में क्या मिला? कुछ नहीं. बस ये है. तो दैट इज द डाउन साइड, दैट्स द रिस्क इन्वॉल्व इन दिस कोर्स एंड दैट्स माई पॉइंट. अगर किसी पढ़ाई में रिस्क है ना तो करनी क्यों है यार. So, Rohan, even at Edimont, we have plenty of students, who have migrated abroad. So, Rohan, my last question is, what is the actual pathway to work abroad, and what are the requirements for this? Right. That's a very relevant question. भाई कि एक्चुअली अगर बाहर जाना हो तो कैसे किया जा सकता है, हाउ डू वी मूव आउट अब्रॉड. और ये सदियों पुराना रास्ता है जो मैं बताने जा रहा हूँ. मैंने इन्वेंट नहीं किया, मैं पहले साफ साफ ये कह दूँ. ये इस रास्ते से कई लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, काम करते हैं और खुशहाल जिंदगी जीते हैं. बड़ा सीधा सा रास्ता होता है. यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट अ डोमेन अथॉरिटी फॉर योरसेल्फ. यू हैव टू वर्क हार्ड एंड शो द वर्ल्ड अराउंड यू कि आपको काम आता है और आप एक बार में काम सही तरीके से बिना गलती के देते हो. यू आर अ स्पेशलिस्ट एट व्हाट यू डू. यू हैव टू प्रूव दैट. सो आई विल गिव यू एन एग्जांपल. वन ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड, क्योंकि मैंने उसके साथ करी हुई एक इंटरव्यू राउंड. गुनीशा नाम है स्टूडेंट का. She's just a CPA. She's not an ACCA or a CA or anything else. She's just a CPA. She's working in the US right now. She's working in Deloitte as a senior manager now. ठीक है? And she's just, I think a year or 2 more and then she'll be applying for her citizenship also. So she's that close now to meeting her goal. Now here's the deal. How did she actually move out? And did she do a STEM course? Did she pay 50 lakhs to anybody? No. Instead, she got paid to move out abroad. And here's how you do this. उसकी CPA जब हुई उसने डिलॉइट गुड़गांव में काम शुरू किया. For 2.5-3 years she worked there with diligence. उससे जब भी बात होती थी वो ये कहती थी काम बहुत है, life is very difficult. I'm in office sometimes even till 11 in the night. But she really showed her team that she knew what she was doing. One of our clients, उसमें कोई मैनेजर था जिनसे अच्छे से बातचीत थी, उनको काम पसंद था गुनीशा का. तो दे शिफ्टेड ऑर्गेनाइजेशंस इन यूके एंड दे केम टू नो कि यहाँ पे ओपनिंग है CPS के लिए एंड वी आर लुकिंग टू गेट समबडी फ्रॉम अब्रॉड. उन्होंने ऑफर कर दी वो जॉब गुनीशा को और कहा कि ये ऑफर है, आप आ जाओ तो आ जाओ. शी एक्सेप्टेड आफ्टर ऑफ कोर्स क्लियरिंग एन इंटरव्यू एंड एवरीथिंग. कई राउंड हुए उसके बट शी क्लियर्ड इट एंड द कंपनी पेड फॉर एवरीथिंग. फॉर द फर्स्ट मंथ व्हेन शी वाज देयर दे इवन पेड फॉर रेंट बाय गिविंग हर अकोमोडेशन एंड गिव हर अ कार फॉर लीज फॉर द मंथ. ये कार भी है आपके पास, ट्रांसपोर्ट की भी दिक्कत नहीं है आपको.
तो दैट इज द पॉइंट. एक ऑप्शन होता है जी आप अपनी जेब से सारे पैसे लगाते चलो, फिर धीरे धीरे आप बिल्ड कर लोगे शायद, और पैसे भी अपनी जेब से कैसे लगाओगे इफ यू आर अ फ्रेशर, इफ यू आर अ स्टूडेंट, तो फिर पेरेंट्स से ही लेके करोगे काम. In which case, why go to the US is my point. In which case, if you are putting money from your parents, और उसमें कोई खराबी नहीं होती. If you're fortunate enough to have money in your family, use it to your benefit. अय्याशी से अच्छा है पढ़ाई में खर्च लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है यार. It's all right. My point is then go to a country where at least you know कि long term के लिए रह सकते हो. So, for example, मेरा खुद का छोटा भाई is in Canada. So if you want to study and then work there and then apply for citizenship, countries like UK, UAE, Canada are much more open than the US. और ये STEM कोर्स वाला फंडा US के लिए ही है, किसी और जगह नहीं चलता ये, ठीक है ना. US का ही वीजा मिलता और किसी जगह का नहीं मिलता. The other thing is, if you are able to, while you are in India, present that you are better than the ordinary, better than the average, you are a key player in your team. So then very naturally, because Gunisha is just one example, other than that there are so many students who get internal transfers. हैं कि ट्रांसफर ही हो रहा है. आई एम बीइंग सेंट टू द यूएस ब्रांच, आई एम बीइंग सेंट टू टेक्सास, आई एम बीइंग सेंट टू व्हाटएवर, वेयरएवर, टू न्यूयॉर्क, और जो भी जगह पे आपकी कंपनी का ब्रांच है वो आपको काम से भेज रहे हैं. वो सबसे अच्छा होता है ना, इंटरनल ट्रांसफर. तो ये रास्ते हैं जो एक्चुअली मेहनत के हैं. अपनी सीपीए कंप्लीट करो, काम करो, समय दो थोड़ा सा खुद को भी, लेट योर करियर ग्रो, and then these opportunities will present themselves to you. In fact, I'll try and put it to you in this way. A lot of CPAs will experience this in their lifetime कि एटलीस्ट एक ऑफर बाहर जाने की जरूर आएगी, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल डिग्री. जब आपको काम आने लगता है तो आपको ऑफर्स मिलती हैं. मैं खुद भी कनाडा में काम कर चुका हूँ 1 साल. मेरा मन नहीं लगा, जो भी मेरे कारण थे, पर्सनल रीजंस थे मेरे बड़े स्ट्रांग. आई हैड टू कम बैक, आई वांटेड टू कम बैक टू इंडिया, बट मेरे जैसे के पास भी ऑप्शंस थे जी to move abroad. So it's only natural. If you do your CPA, then one of the employers will want to send you out. Or maybe you will be in a position to direct apply. मान लो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, you're a fresher, तो UAE के साथ अप्लाई कर लो. क्योंकि क्या होता है ना कि UAE, like I told you, UAE में जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इंटरनेशनल मार्केट का वर्क एक्सपीरियंस है. वो US में काउंट होता है, वो कनाडा में काउंट होता है. तो you can actually then start applying in other countries once you have a few years of experience. तो पाथवे आपके ऊपर है, आप अपना कैसे बनाते हो. एक ऑप्शन ये है कि आप पंगा लेके देख लो 50, 60, 70 लाख का, 80 लाख का, जो भी बैठता है साहब स्टेम कोर्स करने का. कुछ फीस में जाएगा और कुछ खर्चा आपके अपने खाने पीने और रहने में जाएगा. तो वो खर्चा आप कर सकते हो. एक ऑप्शन ये है. और फिर देख सकते हो कि शायद रिन्यूअल की लॉटरी लग जाए तो बहुत बढ़िया. लग गई लॉटरी, उसका नाम ही लॉटरी सिस्टम है. H1 का सिस्टम ही ऐसे लॉटरी है जी, जिसकी लगी उसकी लगी. और अगर ये सिस्टम नहीं पसंद आता, you want to do it yourself and you don't want to lose all of this money and you don't want to spend all of this money, तो और भी रास्ते हैं बाहर जाने के. और मेहनत and earnestness towards your job is one of the fastest ways out of India, if that is your goal. And if that isn't your goal, तो फिर तो STEM कोर्स वगैरह करने का कोई मतलब भी नहीं बनता. और इस पॉडकास्ट के अंदर जो समरी बनती है वो यही है कि it's only if this course is only if you're really hell bent on the idea of moving abroad, only then. And if you are hell-bent on the idea of moving abroad, you have to think how do you want to do it. Applying for immigration is an option. उसमें खर्चा लगेगा, लेकिन obviously STEM कोर्स से बहुत कम लगेगा. और दूसरा ऑप्शन होता है showing your potential, showing your capabilities. उस रास्ते से खर्चा नहीं लगता, उस रास्ते से तो पैसे मिलते हैं बाहर जाने के, पर पहले मेहनत लगती पर पहले मेहनत लगती है. मेहनत दोनों ही केसेस में है guys. As we clearly put this कि नौकरी तभी लगेगी जब सीपीए बन जाओगे. तो मेहनत दोनों तरफ है. हाँ, आपने देखना है, पैसा लगाना है और उसके बाद रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो गैम्बल लेना है, इज योर कॉल. बट स्टे ट्यून टू एडुमॉन्ट क्लासेस पॉडकास्ट सीरीज. लॉट मोर इज कमिंग इन दिस सीजन अगेन. and with that being said, thank you so much for watching. I hope there was some value being added here. And with that being said, like, share, comment, subscribe. Let us know if there's any other topic that you want us to discuss, that you want us to make a podcast on. We read all our comments and we try and respond to them personally as and when we can. So thank you so much for being here. Bye. Have a great day.